SFI کارکنان نے فیس ریمبرسمنٹ کی واجبات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا تلنگانہ اسمبلی کے قریب چہارشنبے کو اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب SFI کے کارکنان نے فیس ریمبرسمنٹ کے واجبات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کنٹرول روم کے سگنل پر ہی احتجاج کو روک دیا اور متعدد احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں خلل پڑا۔ SFI کارکنان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر فیس ریمبرسمنٹ کے واجبات جاری کرے اور طلبہ کو راحت پہنچائے۔ ایندھن کی قلت سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں پیٹرول پمپس پر لوگوں کی قطاریں لگ گئی۔ محکمہ سول سپلائز نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت نہ ہونے کا یقین دلایا۔ عوام کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے کہ تلنگانہ میں ایندھن کی کوئی قلت نہیں ہے۔ محکمہ سول سپلائز نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت نہ ہونے کا یقین دلایا ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط اور گمراہ کن خبروں کی بنیاد پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایندھن کی قلت سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہونے کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیٹرول پمپس کا رخ کرنے لگی اور لوگ غیر ضروری طور پر اپنی گاڑیوں کی ٹانکیاں بھر رہے ہیں، جس کے باعث وقتی دباؤ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ سول سپلائز نے واضح کیا ہے کہ ایندھن کی کوئی قلت نہیں ہے اور IOCL، HPCL اور BPCL جیسی بڑی کمپنیوں کے پاس مناسب مقدار میں اسٹاک موجود ہے۔ تلنگانہ BJP کی صدر N رامچندر راؤ کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو یادداشت پیش کی اور وندے ماترم کا بائیکاٹ کرنے والے مجلسی اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ BJP نے گورنر شیو پرتاپ شکلا پر زور دیا ہے کہ وہ اسمبلی اسپیکر کو ہدایت دیں کہ وہ اسمبلی میں قومی گیت کے تئیں نفرت ظاہر کرنے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کی رکنیت معطل کریں۔ چہارشنبے کو ریاستی صدر N رامچندر راؤ کی قیادت میں BJP قائدین کے ایک وفد نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی اور مجلسی اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ BJP نے گورنر کے علم میں لایا کہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن یعنی 16 مارچ کو جب وندے ماترم، جسے حال ہی میں مرکزی وزارت داخلہ نے قومی گیت قرار دیا تھا اور اسے پڑھنا لازمی قرار دیا گیا تھا، ایوان اسمبلی میں بجایا گیا، لیکن مجلسی اراکین نے قومی گیت بجانے پر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ BJP قائدین نے قومی گیت کے تئیں نفرت ظاہر کرنے پر مجلسی اراکین کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ کانگریس پارٹی سے 40 سال تک وابستہ رہنے والے سابق MLC جیون ریڈی کانگریس پارٹی سے مستعفی ہو گئے۔ سابق MLC جیون ریڈی نے 25 مارچ کی صبح جگتیال میں اپنے پیروکاروں اور حامیوں کی موجودگی میں کانگریس پارٹی کو الوداع کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے کانگریس سے وابستہ رہے۔ جیون ریڈی نے سوال کیا کہ اسمبلی میں مکمل اکثریت ہونے کے باوجود انحرافات کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی کا انحراف اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ MLA سنجے کو کانگریس میں شامل کیا گیا، حالانکہ کئی کارکنان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ جیون ریڈی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ وہ کافی مصائب برداشت کر چکے ہیں اور اب کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ 2 وزراء نے ان سے بات چیت کی تھی۔ KC وینوگوپال نے بھی انہیں یقین دہانی کروائی تھی۔ جیون ریڈی کا کہنا ہے کہ کانگریس کی صورتحال ایسی ہے کہ کارکنان کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کے پیروکاروں کو کافی مایوسی اور توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نامزد عہدوں پر بھی ناانصافی کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار کیے جانے اور 25 سال قید کی سزا پانے والی آمنہ بیگم طویل قانونی جنگ کے بعد آخرکار حیدرآباد کے RGI ایئرپورٹ پہنچی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بے قصور خاتون کی رہائی میں بھرپور تعاون کیا۔
तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के किशन बाग इलाके की रहने वाली आमिना बेगम को मंशियात से मुताल्लिक एक मामले में 18 मई 2025 को दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आमिना बेगम ने इसके बाद 3 रुकनी बेंच के सामने अपनी पहली अर्जी दायर की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। उनके वकील ने यह दलील पेश की कि खातून बेकसूर है और गैर दानिस्ता तौर पर ममनू आशिया पर मुश्तमिल एक बैग अपने साथ ले गई थी। बाद अज़ां मजीद काविशें की गई और अबू धाबी में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अपील और रहम की दरख्वास्त दायर की गई। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कानूनी टीम के साथ भरपूर ताउन किया और अतिया दहिंदगान की मदद से 25,000 दिरहम के कानूनी अखराजात के लिए फंड्स जमा करने में भी कामयाब रहे। मुसलसिल कोशिशों के बाद आखिरकार आमिना बेगम को रिहा कर दिया गया और वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर अमजदुल्ला खान खालिद व दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। आमिना बेगम अपने कमसिन बेटे और मां को एयरपोर्ट पर कई महीनों के बाद देखकर जज्बाती हो गई। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन महबूब नगर और हैदराबाद के कानूनी मुशीर दुबई में एक कानूनी फर्म चला रहे हैं और इन तमाम ने कानूनी माविन को मरबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर आमिना बेगम ने अमजदुल्ला खान खालिद की अनथक मेहनत और दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। अमजदुल्ला खान खालिद ने भी तमाम अतिया दहिंदगान और खैर ख्वाहों से इजहार तशक्कुर किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मगरबी बंगाल में एजेयूपी के साथ इत्तेहाद सिर्फ वोट की तकसीम के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की बराबरी और सियासी ताकत के हुसूल के लिए है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ऐलान किया कि उनकी जमात ने साबिक टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद महज इंतखाबी मफाद के लिए नहीं है बल्कि कमज़ोर तबक़ात के इस्तेसाल के खात्मे और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए है। सदर मजलिस का कहना था कि उनकी ये कोशिश है कि मगरबी बंगाल में मुस्लिम क़यादत उभरे और मजबूत बने। ये इत्तेहाद सिर्फ वोट की तकसीम के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की बराबरी और सियासी ताकत के हुसूल के लिए है। बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल में अक़लियतों की तरक्की को एक अहम मसला करार दिया है और कहा है कि मौजूदा हुकूमत इस महाज पर नाकाम रही है। एजेयूपी के सदर हुमायूं कबीर ने भी इस मौके पर कहा कि एआईएमआईएम और एजेयूपी का इत्तेहाद आइंदा असम्बली इंतखाबात में 294 में से 182 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगा और अगर इंतखाबात में ये मुनक़सिम मैंडेट सामने लाता है तो ये इत्तेहाद हुकूमत साजी में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। आपको याद दिला दें कि मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2021 के इंतखाबात में भी मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उम्मीदवार खड़े किए थे, ताहम खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि एआईएमआईएम और एजेयूपी का ये नया इत्तेहाद ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती हलकों में टीएमसी के लिए चैलेंज बन सकता है। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असम्बली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने पोल्ट्री कंपनियों की
पॉलिसी पर बरहमी जाहिर करते हुए 1 अप्रैल से तेलंगाना भर में चिकन चॉप्स बंद करने का ऐलान किया है। चिकन चॉप ओनर्स एसोसिएशन ने पोल्ट्री कंपनियों की पॉलिसी पर बरहमी जाहिर की है कि उन्हें दिया जाने वाला मुनाफा इंतहाई कम है। ताजिरों ने बताया कि उन्हें पहले दिए जा रहे मुनाफे से 20 रुपये कम दिए जा रहे हैं। ताजिर बरहम है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला मुनाफा इंतहाई कम है। चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर पोल्ट्री कंपनियों ने उनके मुनाफे में इजाफा न किया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इसी तरह की सूरत हाल बनी रही तो वो कारोबार नहीं कर सकेंगे और फिर दुकानात बंद कर दी जाएगी। याद रहे कि 1 किलो मुर्गे की गोश्त की मौजूदा कीमत 360 रुपये तथा 370 रुपये के दरमियान है। चंद हफ्तों में मुर्गे की गोश्त की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मार्केट में सप्लाई कम हो रही है क्योंकि गर्मी से मुर्गियां फौत हो रही हैं। बताया जाता है कि गर्मियों की वजह से कई पोल्ट्री फार्म्स ने मुर्गियां पालना बंद कर दी है, जिसके नतीजे में सप्लाई में नुमायां कमी आई है। मुर्गियां आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दीगर रियासतों से दरामद की जा रही है। ताजरीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में मुर्गी का गोश्त 400 रुपये फी किलो भी फरोख्त किए जाने का इम्कान है। पुराने शहर के इलाके काली खबर में सोफा बनाने वाले एक कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया काली खबर इलाके में सोफा बनाने वाले एक गोदाम में आतिशज़दी का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि रिहायशी इलाके में आतिशज़दी का वाकया पेश आने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। ताहम किसी के जख्मी न होने और कोई जानी नुकसान न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हाइड्रा प्रजावानी के जरिए अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद संगारेड्डी जिले के पटन चेरू मंडल का दौरा किया। संगारेड्डी जिले के पटन चेरू मंडल में अवामी सहूलियात के लिए मख्तस की गई अराजियात पर गैर कानूनी कब्जों की शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने वहां का दौरा किया। कमिश्नर ने खास तौर पर पतगानापुर गांव में आनंद नगर लेआउट का दौरा किया। उन्होंने पाया कि लेआउट के अंदर वो अराजियात जो सड़कों और पार्कों जैसे अवामी मकासद के लिए मख्तस की गई थी, वहां बड़े पैमाने पर तजावुजात किए गए हैं। मायने के दौरान ये पाया गया कि बाज़ मुकामात पर पार्क की जगहों पर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और सड़कों के रकबे को कम करके निजी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अफसरान से नक्शे जात हासिल किए और लेआउट के असल डिज़ाइन का मौजूदा सूरत हाल से मवाज़ाना किया। एवी रंगनाथ ने कहा कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली हर शिकायत अहम है। अवामी ज़मीनों, पार्कों और सड़कों पर किसी भी किस्म के कब्ज़ेजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुकाम को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर उन अराजियात की पैमाइश करें और हदबंदी करके तजावुजात को हटाते हुए रिपोर्ट पेश करें। अलामाजी हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अमीनपुर में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के नुमाइंदों की जानिब से दायर की गई शिकायत का भी जायज़ा लिया। हाइड्रा के कमिश्नर ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है कि इलाके में कोई तजावुजात न किए जाएं। कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया है कि जिन्होंने इलाके में पहले ही मकानात तामीर कर रखे हैं या प्लॉट खरीद लिए हैं, उन्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एवी रंगनाथ ने अमीनपुर मंडल के बेरमगुड़ा गांव में शंभोनी कंटा टैंक के आउटलेट्स का भी मुआयना किया। मुकामी बाशिंदों की जानिब से जमा कराई गई शिकायत का भी जायज़ा लिया गया। उन्होंने हिदायत जारी की कि एक तामीराती फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने तामीराती कामों के दौरान आउटलेट को ब्लॉक करने का काम किया। हाइड्रा के कमिश्नर ने हुकाम को सैलाब के निकासियाब के रास्तों को बहाल करने और रुकावट के जिम्मेदारान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की भी हिदायत दी है। एपीसीसी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने बतौर एहतजाज कड़पा जिले में केले से लदी गाड़ी चलाई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश कर केले के किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पीसीसीसी की सदर वाईएस शर्मिला ने कड़पा जिले में अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने
کیلے کی گرتی قیمتوں کی وجہ سے کسانوں کو درپیش مشکلات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کیلے سے لدی ایک گاڑی چلائی۔ وہ گاڑی لے کر کڑپا کلکٹریٹ پہنچی، جہاں انہوں نے کلکٹر کو ایک یادداشت پیش کی۔ اپنی یادداشت میں وائی ایس شرمیلا نے مطالبہ کیا کہ منڈی میں مناسب قیمتوں کو یقینی بنایا جائے اور کیلے کے کسانوں کو فوراً معاوضہ ادا کرتے ہوئے ان کے نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ وقار ضلع کے پرگی منڈل میں ایک اسٹیل کمپنی میں زبردست دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، کئی کارکن زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا پرگی منڈل میں لکشمی دیوی پلی کے قریب سگونا اسٹیل فیکٹری میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اچانک دھماکے سے فیکٹری میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ فیکٹری کے احاطے سے دھواں نکلتا دیکھ مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں اندر کام کرنے والے متعدد کارکن شدید زخمی ہو گئے ہیں، تاہم کمپنی انتظامیہ اس حادثے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، لیکن کمپنی کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لاری کا ٹائر پھٹا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کو لے کر کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ زخمی کارکنوں کو خفیہ طور پر اسپتال لے جایا گیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایندھن کی قلت کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ایندھن کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور یہ 60 دنوں کے لیے کافی ہے۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی مقامات پر ایندھن کی قلت کی افواہیں پھیلنے کے بعد پیٹرول پمپس اور گیس پمپس پر موٹر سائیکلوں اور آٹوز کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ عوام گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ایسے میں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور یہ اعادہ کیا کہ ایندھن کا کافی ذخیرہ موجود ہے، یہ 60 دنوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کو گھبرانے یا افواہوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی سی سجنار نے کہا کہ حیدرآباد پولیس حدود میں 250 فیول سٹیشن سے اور کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے فیول سٹیشنز پر کافی بندوبست کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئل ڈپو سے شہر کو ایندھن سپلائی کرنے والے تقریباً 320 تیل کے ٹینکرز تھے۔ وی سی سجنار نے وضاحت کی کہ آئل ٹینکرز کو آئل ڈپو پر گاڑیوں کو ریفل کرنے اور انہیں فیول سٹیشنز کو سپلائی کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، اس لیے پیٹرول پمپس پر نو اسٹاک کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ یہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دریں اثنا حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ ایک ریونیو اہلکار، ایک سول سپلائی افسر اور ایک پولیس اہلکار ہر فیول سٹیشن پر موجود ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ عوام کو خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ఈ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే అందరూ ప్యానిక్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది దాన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి అని మేము స్టాక్ పొజిషన్ చూస్తే కనుక మన దగ్గర 60 days వరకు స్టాక్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఎవరికి ఏ విధమైన ప్యానిక్ అవసరం లేదు. ఈ 60 days స్టాక్ కూడా ఎవ్రీ టైం రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కంటిన్యూస్గా మనకి సప్లైస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఎక్కడ కూడా సప్లై నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది. బట్ ఇష్యూ ఈ ప్యానిక్ వల్ల సోషల్ మీడియాలో క్రియేట్ అయిన ప్యానిక్ వల్ల చాలా మంది వెళ్ళి పెట్రోల్ బంక్స్ దగ్గర کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ اور خیرتآباد زون کے اہلکاروں نے ناریل پاؤڈر تیار کرنے والے ایک غیر قانونی یونٹ پر چھاپہ مارتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور بھاری مقدار میں ناریل کا پاؤڈر ضبط کیا ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ اور خیرتآباد زون نے گوشہ محل پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ناریل کا پاؤڈر بنانے والے ایک غیر قانونی یونٹ پر چھاپہ مارتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بھاری مقدار میں ناریل کا پاؤڈر اور پیکنگ کا سامان بھی قبضے میں لیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 21 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ملزم کی شناخت این ماروتیا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ بیگم بازار میں بالاجی پرشوتم کوکونٹ بزنس کے نام سے دکان چلا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ ریاست کرناٹک سے سستے داموں میں غیر معیاری ناریل پاؤڈر خریدا کرتا تھا اور اسے چیتک برانڈ کے پیکٹس میں بھر کر اصلی بتا کر فروخت کرتا تھا۔
मुलजिम के पास कोई लाइसेंस या फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। वो पैकेट्स पर बैच नंबर या फिर एक्सपायरी डेट दर्ज किए बगैर ही फरोख्त करते हुए आवाम को धोखा दे रहा था। पुलिस ने गोशा महल थाने में मुलजिम के खिलाफ BNS की दफात और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले असले की स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले असले की स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट से जुड़े 10 अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दिल्ली के वैलिड सिटी से ये रैकेट चलाया जा रहा था। मजमूई तौर पर 21 गैर मुल्की साख्ता हथियार, जिनमें मशीन गनें, पिस्तौल व दीगर शामिल हैं, बरामद कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि जो हथियार बरामद हुए हैं वो स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। हथियारों को हिंदुस्तान नेपाल सरहद के जरिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्मगल किया गया था। दिल्ली, NCR और दीगर रियासतों में जराइम पेशा गिरोह को ये हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने ईरान के मिसाइल हमले में उसके बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचने का दावा किया है। ईरान से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल ने ओरोट रॉबिन पावर प्लांट को अपना निशाना बनाया है, जो कि हदीरा में वाक़ इसराइल की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली तंसीब है। ताहम इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने यह दावा किया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद उसके बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंदुस्तान के 2 जहाज पाइन गैस और जगवसंत 92,612 मैट्रिक टन LPG लेकर कामयाबी के साथ आबनाए हरमज पार कर गए। जहाज़ों के आइंदा 2 या 3 दिनों में हिंदुस्तान पहुंचने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत ने ये तस्दीक की है कि पाइन गैस और जगवसंत नामी 2 बड़े LPG जहाज महफूज तरीके से हरमज के समंदरी गुजरगाह को पार कर चुके हैं और तेजी से हिंदुस्तान की सिमत बढ़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ये इलाका कशीदगी का मरकज रहा है। शिपिंग वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि इन जहाज़ों के आने से मुल्क में पकवान गैस की फराहमी मजीद मजबूत हो जाएगी। जहाज़ जगवसंत कुवैत से 47,600 मैट्रिक टन LPG लेकर आ रहा है और ये तवक्को है कि ये गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि जहाज़ पाइन गैस UAE के रोए से 45,000 मैट्रिक टन गैस लेकर रवाना हुआ था और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा। रास्ते को अबूर करने में उन्हें तकरीबन 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इलाके में कशीदगी की वजह से सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त 20 और हिंदुस्तानी जहाज़ इस इलाके के मगरबी हिस्से में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से सख्त निगरानी की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।